क्या एक आमेन सुन सकते Turn your हैं? Bible to Mark chapter 7, 32 to 33. Something I'll show you. मरकुस का 7 अध्याय और 30। Okay. Then they brought to him one who was deaf. Say with me, deaf. Impediment in his speech, and they begged him to put his hand on him. मरकुस का 7:32 कहता है, फिर लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उससे के पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। What did they ask? What did they beg? और क्या उन्होंने वो क्या मांगा उनसे, विनती की? They begged him to put his hand on him. उसने विनती की कि वो उस पर हाथ डाले, यीशु मसीह। Pastor Jesus, और पास्टर यीशु, I brought this akla, I brought this deaf, you lay your hands upon him. मैं ये हकलाते हुए व्यक्ति को, ये बहरे को तेरे पास लाया, तू तेरे हाथ उस पर रखकर चंगा कर। Now, read the next verse. अभी अगला वचन See पढ़ेंगे। that Jesus works different way. अभी यीशु कर अलग रीति से कार्य He करते took हैं। him aside from the multitude और तब वो उसको भीड़ से अलग ले and he गया put his fingers in his ears और फिर उसके उंगलियों में उसके कानों में डाली and he spat and touched his tongue. और थूक कर उसके जीभ को छुआ। Hallelujah. That's the way of the master works creator. अभी देखो हमारे सृष्टि का कर्ता स्वामी कैसे काम करता So that है। means Jesus took him away from the crowd. अभी यीशु मुझसे उसके भीड़ से अलग ले जाता है। So why did Jesus do that? तो यीशु ने ऐसा क्यों किया? Because the people around you क्योंकि जो लोग आपके चारों ओर आपको घेर के हैं, can be a biggest hindrance for your deliverance. तुम्हारा छुटकारा के लिए सबसे बड़ी अड़चन बन सकते हैं। Hallelujah. If the Hallelujah. heaven wants to release something to you, अगर स्वर्ग तुम्हें कुछ देना चाहता है, hallelujah, first God will remove the biggest hindrance. तो प्रभु सबसे बड़ी जो रुकावट है उसे हटा देता है। Before God wants to take the church to the next dimension, कलीसिया को अगले आयाम में ले जाने से God पहले will remove some hindrances. प्रभु ऐसे कुछ रुकावटों को निकाल देंगे, Because He is going to release something from heaven to the house of God, to the people of क्योंकि God. वो स्वर्ग से कुछ ऐसे प्रभु के लोगों के ऊपर उड़ेलना चाहते हैं। Hallelujah. The day you give up on your friends. और जिस दिन तुम तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दोगे, Why? They are holding tight with the attachments, emotional attachments. क्योंकि वो आपको बड़े गले लगाकर टाइट पकड़े हुए और आप भावुक होकर उनके साथ जुड़ जाते हो। Pao is deaf. अरे जाने दे, बेचारा बहरा है। Pao is impedient. अरे बेचारा देखो गूंगा भी है, अखलाता है. Hallelujah. हकलाता है बेचारा, You know, बात नहीं कर this पाता kind है। of power, they are making sin. और ऐसे ही लोग जो पावम कहते हैं अपने आप को, वो पाप कराने लगाते So हैं, he cannot be healed. That's the biggest hindrance. ताकि वो लोग चंगाई नहीं पा सकते। बड़ी बड़ी अड़चन है। The day you give up on your friends और जिस दिन आप अपने दोस्तों को छोड़ दोगे, who are holding on tight to your thoughts and emotions, जो आपने भावनाओं को, अपने विचारों को आपको पकड़ कर रखा if है, that attachment is gone, listen to this. अभी ध्यान से इसे सुने, आपका अगर ये सारा अटैचमेंट निकल जाता है, You will not have party spirit. You will have God's spirit in you. तो आपके अंदर पार्टी की somebody. आत्मा नहीं रहेगी, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करेगी। Hallelujah. So what happens? First, God wants to remove the hindrance, biggest hindrance. तो पहली बात क्या होती है? प्रभु सबसे बड़ी जो अड़चन है, रुकावट है, उसको निकालना चाहता है। Hallelujah. Can I hear an amen? Are you getting this? Yes. Because this man who is sick, क्योंकि ये आदमी जो बीमार है, he is only depending on somebody else. वो केवल किसी और पर निर्भरित है, इसलिए is depending on somebody else. क्योंकि वो दोनों काम नहीं कर रहे, तो अभी किसी और पर अपना If किसी we और से अपना stop, आधार ले रहा है। if we stop depending on man अगर हम मनुष्य का सहारा लेने से बंद करें अपना, and start looking और उनको देखना शुरू करें to God, परमेश्वर को, what He is going to release. तो क्या कुछ हमें दे सकता है? Hallelujah. How different it would be. तो कैसा सब कुछ बदल जाए। Read verse 33, 34 please. Jesus takes this man away from the crowd अभी यीशु मसीह इस व्यक्ति को सारे भीड़ से अलग लेकर जाता है and He heals him. और वो बाहर लेकर जाकर उसे चंगा करता है। That means when the hindrances have gone, यानी जब अड़चन निकल जाती है, the power of God flows. आमेन, तब प्रभु का सामर्थ बहना शुरू हो जाता है। When Jesus spat,
जब यीशु मसीह थूके, थूके, बोलो ना थूके. Hallelujah. Jesus also spat. यीशु मसीह भी थूके. You know what happened when he spit? जब यीशु मसीह थूके तो क्या हुआ? There was a transferring spirit took place. That is, Amen. his DNA got changed. यानी वहां पे एक अदली Whoa. बदली हुई, वहां पे कुछ ट्रांसफर हुआ, वो उसका Means डीएनए बदल गया. Jesus spat, यानी यीशु मसीह थूके, its DNA got transformed. अभी उसका जो डीएनए वो बदल गया. The Bible says in Mark 7:34. मरकुस का 7:34 कहता Now listen. है, Then looking up to heaven, he seized and said to him, Ephphatha, that is been opened. और फिर स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उसने यीशु ने कहा, इपथा अर्थात खुल जा. Hallelujah. हालेलुया. So that means उसका मतलब है man cannot receive anything except from heaven. यानी मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता केवल स्वर्ग के अलावा. Jesus said, Ephphat, इपथा open. खुल जा. Amen. One word. केवल एक शब्द, One word. एक शब्द, One word. एक शब्द. Can somebody read in Marathi louder this word? क्या मराठी में कोई जोर से ये शब्द पढ़े ये वाक्य को? Ephphatha. इफाता Opened up. खुल जा. To be opened. खुल जा. Prophetically prophesy. आज नबूवत रूप में आप पर भविष्यवाणी में कर रहा हूं. Ephphatha. इफाता. आमेन. Heaven is opened. स्वर्ग आपके लिए खुल गया है. Ephphatha. इफाता. Ephphatha. इफाता. Ephphatha. इफाता. Heaven is opened upon your स्वर्ग head. आपके सर पे ऊपर खुल चुका है. Question is why Jesus looked to heaven सवाल यह है कि यीशु मसीह स्वर्ग की ओर क्यों देखा? before that fellow got healed. Jesus is looking to heaven. वो व्यक्ति की चंगाई होने से पहले यीशु मसीह स्वर्ग को ताक कर देख Now रहे understand हैं. this. Before he heals the deaf and the hakla, अभी देखो, अभी ये बात समझे आप लोग. वो बहरा और हकलाते हुए व्यक्ति को चंगा करने से पहले Jesus put his finger in his ears यीशु मसीह अपनी उंगली उसके कान में डाल दी and he is looking to heaven. और वो स्वर्ग की ओर देख रहा है He ceased. और वो वहां पे ही सीज हो गया. He said, Ephphatha, वो कहने लगा इफाता, means heaven opened. यानी स्वर्ग खुल गया. Meaning man cannot receive nothing on this is except from heaven. यानी कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं रिसीव कर सकता जब तक सकता है. स्वर्ग उसे नहीं देता है. Hallelujah. You may be in a situation today. Someone likes to have Ephphatha in your life. और आप ऐसे परिस्थिति में होंगे, शायद You are expecting some heaven to open on your life. अब शायद अपने जीवन के ऊपर कुछ तो स्वर्ग का दरवाजा खोलने की अपेक्षा कर Can I रहे hear हो. an amen? If the heaven has to open, अगर स्वर्ग को खुलना है, you need to come to Jesus. आपको यीशु के पास आना है. Hallelujah. You may be in a situation शायद आप एक ऐसे परिस्थिति में होंगे like this deaf fellow. और ये बहरे व्यक्ति के जैसे You need to say Ephphatha. आपको इफाता कहना है. Hallelujah. Say with me, Ephphatha. 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 Ephphatha means heaven is opened on your head. इफाता का मतलब है स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है आपके That means, ऊपर. listen to this. This fellow who is deaf and dumb, यानी ये व्यक्ति जो गूंगा और बहरा है, on his head the heaven was closed. उसके सर के ऊपर आकाश उसके लिए स्वर्ग बंद था. No matter how much ever you sow your seeds, कितने भी भले आप अपने बीज को बो रहे हो, no matter how much ever money you give to the house of God, आप कितना भी पैसा प्रभु के भवन के लिए देते हो, no matter how many prayers you pray, भले आपने बहुत सारे दुआएं की हैं, because man cannot receive anything except it from heaven. क्योंकि कोई भी मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता यदि स्वर्ग उसे नहीं देगा. Hallelujah. स्वर्ग देने का मतलब तुम स्वर्ग में आने का है. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. प्रार्थना करो ब्रदर, प्रार्थना करो ब्रदर, प्रार्थना. No, heaven is closed on your head. तो you say pray brother. No, but heaven is closed. आप स्वर्ग आपके लिए बंद हो चुका है आपके सर के I ऊपर. gave money.
हाँ, मैंने पैसे I दिए, gave tithes. मैंने दसवां I gave किया, donation. मैंने डोनेशन दिया, I blessed you. मैंने आपको आशीष दी है, But heaven is closed लेकिन स्वर्ग बंद है because there are some attachments क्यों? that is still hindering you, hindering above you, so that the heaven is closed. और क्योंकि तुम किसी और अन्य वस्तु से ऐसे जुड़े हुए हो, वही बात आपके जीवन में रुकावट बन गई, आपके ऊपर का जो स्वर्ग का जो आशीष है उसके लिए बंद हो चुकी Look है। at Jesus Christ. यीशु की ओर देखिए, Before he started his ministry, अपनी सेवकाई की शुरुआत करने से he पहले did not start unless the heaven opened and gave the voice. तो उन्होंने जब तक स्वर्ग से आवाज नहीं सुनी तब तक उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत नहीं की। The voice came from heaven. स्वर्ग से आवाज आई। Hallelujah. Say with me, I am controlled by voices. कहो कि आवाजें मुझे नियंत्रित करती हैं। I'll prove it. अभी मैं साबित करूंगा उसे। It is not the heavenly voice you are controlled now, you are controlled by the earthly voices. आप अभी स्वर्ग की आवाज आपको नहीं चला रहा है, लेकिन ये पृथ्वी की जो आवाज है उस पर आप चल रहे हो। I'll prove it in some time. अभी थोड़े समय में उस बात को मैं साबित करके आपको If you read in the Bible, Isaiah 30:21, अगर यशाया का पुस्तक 30:21 पढ़ोगे, a person destiny is controlled by voices. आप एक व्यक्ति का जो भाग्य है उसकी वाणी उसकी आवाज के द्वारा नियंत्रित होती The है। Bible says, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Wherever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. और बाइबल कहता है कि जब कभी तुम दाहिने या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। Hallelujah. Your life is controlled by voices. अभी आपका जीवन इस आवाज के ऊपर Whether कंट्रोल you है। go this way or whether you go that way. अगर आप इस तरफ जाना है कि आपको उस तरफ जाना It is है, determined by the voices वो जो आपके कानों में आवाज पड़ रहा है उसके ऊपर that निर्धारित is है, behind you. जो आपके पीछे है। Hallelujah. Whether you know this or not, अगर आप इस बात को जानते हैं या your नहीं, life is where it is because of voices. आप आज जो कोई स्थान पे आप अटके हो या बने हो, वो आपकी आवाज सुनने के कारण है। There are wrong voices. जो गलत आवाजें हैं There is right और voices. सही आवाजें हैं, There is strange voice. और अजनबी आवाजें भी हैं, Ungodly voices. अपवित्र आवाजें आती है। Whether you know this or not, there is a voice behind you that is controlling your life. अगर आपको इस बात के बारे में जानकारी है या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ आवाजें हैं जो आपको नियंत्रित कर रही हैं। Even horoscope controls your life. देखो, ज्योतिषी भी आपको नियंत्रित करता है। Even the horoscope has a voice. जो ज्योतिष की भी एक आवाज है, Or your horoscope is a voice. ज्योतिषी भी एक वाणी आवाज है। Everyone here, हर एक व्यक्ति जो you यहाँ are है, controlled by voices. आपको कोई तो आवाज नियंत्रित कर The रहा है, voice of your conscience. जो आपके विवेक की आवाज The है, voice of your past. आपके भूतकाल की आवाज The है, voice of your flesh. जो आपकी शरीर की आवाज The है, voice of your wife. वो आपकी पत्नी की आवाज, The voice of your husband. आपकी पति का आवाज, The voice of your friends. आपके दोस्तों की वाणी, The voice of sins. पाप का आवाज, The voice of this nation. इस देश की आवाज, You're controlled. वो आपको चलाता है। Hallelujah. That's what when the voice of the past control, how much ever you try to pamper them, they will only talk about the past. अभी देखो, कभी जब आपका बीती हुई अतीत की बातों का अगर आप आज भी नियंत्रित कर रहा है बीता हुआ वर्तमान, तो कितना भी आप उनको सलाह मशवरा करने की कोशिश करो, फिर भी पीछे ही जाते हैं। मेरा अतीत बीत गया, घर पे जाके वही अतीत को निकाल के बात करके, फाइट करके, झगड़ा करके, मारपीट करके, तू में करके गंदा कर। You say your past is gone, but you'll remember all those things of the past. You'll go home and start talking about those things and start fighting with people regarding those things. Are you there with me? Are you there with me? The voice. Say with me, the voice. आवाजें।
Your life is controlled by voices. आपका जीवन इस आवाजों के ऊपर चलता है। नियंत्रण है, नियंत्रण। ये आवाजों के नियंत्रण में है। You don't know it. आपको पता नहीं। You shall hear this voice behind you. आप ये आवाज पीछे से सुनोगे। Hey, hallelujah. मैं हालेलुया बोलेगा तो तुम भी हालेलुया बोलते जब पासवान बोल रहे हैं हालेलुया तब आप चिल्लाते हो हालेलुया। Are you controlled by man's voice or are you controlled by God's voice? क्या आप मनुष्य की आवाज आपको नियंत्रण कर रहा है या आप मनुष्य प्रभु की आवाज से नियंत्रित होते हो? The voice says this way, that way. आपके कानों में आवाज आती है कि इस तरफ चलना, इस मार्ग को लेना, उस मार्ग को लेना है। If this is the true, the voice is controlling you. अगर ये सच है कि आवाज हमें नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, Then the silence is myth. तो फिर यानी गुपचुप रहना वो एक मिथ है। Do you believe in silence or no? क्या आप इस गुपचुप रहने के बारे में विश्वास करते हो? To be मौन silent. मौन रखना। I believe in quietness, not silence. मैं शांत Silence is मैं one who go to the शांतता grave. पे विश्वास करता हूँ, मौन के पर विश्वास नहीं करता हूँ। Are they with me? Now let me explain. अभी मैं उसे समझाता I हूँ। don't believe in silence. स्कूल में बोलता रहता है silence please, silence please. स्कूल में बोलते रहते बच्चों को कि मौन रखो, मौन रखो, मौन रखो। Silence is a lie. और मौन रखना वो एक झूठ है। Because silence means there is no voices. यानी अगर मौन रखेंगे तो कोई आवाज ही नहीं सुन रहा है। Silence means there is no voices. मौन है उसका मतलब कोई आवाजें नहीं सुनाई दे रही। Even if you think there is silence अगर आपको लग रहा है कि वहां पे मौन है in your life, आपके जीवन में, there is a voice talking. एक आवाज है जो आपसे बातचीत कर रहा है। Correct? हाँ या ना? साइलेंस बैठा है लेकिन आवाज गूंज रहा है। Amen. आप जो है मौन बैठे हो लेकिन कानों में कुछ आवाजें गूंज So, रही है। हाँ या ना? Silence is a lie. तो ये मौन रखना वो एक झूठी But बात है। quietness is a blessing. लेकिन शांत रहना वो एक आशीष की